In the morning, I have a session with your seniors. It was really very interactive. They have participated wholeheartedly. So, my name is, you might have noticed on the board. Okay. So, in Punjab, Haryana, Himachal, Uttarakhand. So, dear students, the session which I am going to have with you is pure interactive session. I'll not be showing any PPT or any video here. हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे. Normally in our country people know about various boards, but ICSE board is not very much clear with a lot of people. So I have special instructions to tell you about the ICSE board. We will mix the session with the board explanations as well as we'll mix it with my content, right? ICSE learning that builds you, not breaks you. जो ICSE से हम सीखते हैं, that makes us very strong. तोड़ता नहीं है वो आपको. ICSE में किस पे फोकस किया जाता है? ICSE पे कॉन्सेप्ट के ऊपर, कि कॉन्सेप्ट क्या है उसके ऊपर फोकस किया जाता है. कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है. अब किसी ने पूछा मुझसे, someone asked me, सभी लोग सुनना, बड़ा मजा आएगा. Someone asked me, what is concept of a concept? कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? सर, जब भी पीटीएम होती है, whenever there is a PTM, तो मैम के पास एक वर्ड होता है. सभी स्कूल्स की ये प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स आते हैं और जैसे ही वो पीटीएम वाले रूम में एंटर होती है तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास एंड सो ऑन, आपके बच्चे के ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है जी, इसके बेसिक्स एंड फंडामेंटल क्लियर नहीं है. तो मुझे किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर कॉन्सेप्ट क्या था, व्हाट इज कॉन्सेप्ट? मैंने बोला यार, जब भी कोई चीज ब्लू हो जाए वो जहरीली हो जाती है. जैसे कोई ब्लूइश आए ना स्किन के ऊपर, तो कोई पॉइजनस इंसेक्ट उसने स्टिंग मारा है, मतलब जो नीला है वो जहरीला है. दैट इज ए कॉन्सेप्ट. व्हाटएवर इज ब्लू, दैट इज पॉइजनस. अब नीट स्कैम से एक बंदा डॉक्टर बन गया ऑर्थो का. जुलाई के मंथ में उस डॉक्टर के पास बंदा आके बोला कि सर मेरी ना लेग्स 3 दिन से ब्लू ही हैं, बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है, टेस्ट भी सारे करा लिए. बोलता हो जो नीला है वो कॉन्सेप्ट क्या है, जो नीला है वो, कहता यार तेरे तो शरीर विच ना जहर फैल गई,
the poison is spreading in your body, so we have to ampute your both legs. ओदियां दोनों टंगा चॉप्ड. अब उसके प्रोस्थेटिक्स आर्टिफिशियल लिम्स लग गए. अगले साल फिर जुलाई में वो आ गया, तो उसको जो लकड़ी की टांगे थी वो भी ब्लू हो गई. दैट इज ऑल्सो टर्न ब्लू. जब वो भी ब्लू हो गई तो वहां पर एक आपसे समझदार बंदा बैठा था. कहता लास्ट ईयर तुम जुलाई के महीने में आया था, तेरी लेग्स ब्लू थी. कहता यस. कहता इस बार भी जुलाई के मंथ में ब्लू है. कहता यस. क्या पहनी हुई थी आपने? कहता ब्लू जीन. कहता बेवकूफ, ये तो जीन का रंग उतरता है. सो लॉजिक क्या है? कॉन्सेप्ट इज नॉट क्लियर. ओनली वन कॉन्सेप्ट इज विद द डॉक्टर. व्हाटएवर इज ब्लू दैट इज पॉइजनस. This is wrong. In a rainy day, there is a lot of water logging on the rooftop. Papa says, look, go upstairs and see why there is water logging. Papa, ऊपर there is a drain, you know, that is choked one. जाली तोड़ दे यार फिर. Go and hammer it. Once you hammer it, the whole water is drained out. Concept. You throw hammer, brick, water will go down. Now they were traveling in a boat. In the boat, water was coming up. He said, give me the hathoda, I'll break another hole. From this hole, the water will enter. From the other hole, the water will go down. That concept is what? तोड़ेगा तो पानी नीचे जाएगा, तो उसको यही था. This is what wrong it is. What is fundamental of a fundamental? What is basics of a basics? What is concept of a concept? To understand the logic. Who gave the law of inertia? Sure. Very good. Aja, come out. Yes, yes. Everyone will be participating today, right? First of all, you have to introduce. Come. सर एक टेबल चुकवा दो चाहे. कोई ना, मैं नाल लगता है. कम है, उधर रखो. Who gave the law of inertia? Yes, beta. Who gave the law of inertia? Newton. Newton. Raise hand all. Very good. Clap. I was studying in 9th class. There is one uncle, his name is Education C. If you translate Education C, Vidya Sagar. So he told me that law of inertia is given by Sir Isaac Newton. So in exam, sir, by chance that question comes. And uncle generally comes in the evening and say, show me your paper. देखा मैं क्या से लॉ ऑफ इनर्शिया आ गया कि नहीं. मैं कहा के ऊपर लिखता फिर न्यूटन. व्हेन पेपर वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, माय ऑनरेबल टीचर हैड गिवन मी 0 marks. द लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट गिवन बाय आइजैक न्यूटन, इट इज गिवन बाय गैलीलियो. यस, आजकल तो नॉलेज का जमाना, इंफॉर्मेशन का जमाना. यू कैन चेक इट. सो डियर स्टूडेंट्स, this is not a thorough study we are doing. When that uncle again comes, I said, you are such a education C. आप वो विद्या के सागर हो जिसमें विद्या की एक बूंद नहीं है. बेटा, we learn daily. When we come बेटा, come here. We learn daily. हम लोग रोज सीखते हैं. ICSE क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग अप. आपका सिलेबस होता क्या है? जब आप आईसीएसई स्कूल को सिलेक्ट करते हो तो एक पंजाबी च कहते भांजी मारन वाला बंदा आ जाता है. केड़ा स्कूल जा रहे हो? आईसीएसई. ब्रांड दो, बड़ा टफ है. इसका सिलेबस बहुत मुश्किल है. आईसीएसई टफ है, लेकिन टफ चीजें फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. हाँ या ना?
सॉफ्ट सैंड पर मजबूत बिल्डिंग कभी नहीं बनती, आया ना? वो ऐड नहीं आती कि बेटा घर बना रहे हैं, ये तो जमीन देख कितनी नरम है, टेबल गिर जाता है। तो जमीन शुड बी वेरी गुड, दैट इज आईसीएसई। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आईसीएसई बोर्ड नाउ। हम भी जब गांव में पढ़ते थे तो जब भी कोई गेस्ट आता था तो हमारी क्लैपिंग होती थी, एक बीट होती है 1 2 चा चा चा, जैसे ऐसे ना। उसके बाद हमारे भी पीटी सर होते थे ऐसे, तो बाद में वही आवाज हमारी पीठ के ऊपर जब पैते थे थपेड़े फिर आती थी। लॉजिक सुनो। 1950 में 1950 में इंडिया में एजुकेशन के लिए एक वर्क किया गया, एक बोर्ड की डिमांड की गई जो इंटरनेशनल लेवल को मैच करे। मतलब आज की डेट में कोई बंदा बोलता है यार मैंने कार लेनी है जो जब मुक्तसर का फाटक बंद हो, उस पे पंखे ऑन हो, ड्रोन बन के उड़ के सीधा लैंड करे लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट के पास। मींस 1950 में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट, विद ए मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ए बोर्ड वाज बीइंग प्लान्ड। दैट बोर्ड इज नथिंग बट ICSE's foundation. Then Cambridge University, which is international university, they people helped ICSE in curriculum to design curriculum. So your level of board is international standard, which is in accordance with Cambridge University. Are you aware of this? Just imagine whatever you are learning here in ICSE, same is being taught in England. Same is being taught in England, in Europe, because your curriculum is in accordance with Cambridge campus. Amazing. You are gearing up to match the international standards. आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करवाया गया है। अब जो बाकी बोर्ड है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ICSE की मेरिट्स बता रहा हूं। When you go abroad, suppose somehow, so you will be immediately absorbed in schools. So big round of applause once again for ICSE. First of all, you introduce yourself. My name is Kunal Bhatt. Kunal, as a student, what kind of problem you face? In school, I'm studying. In study, not in school, in study. Sir, some bit of difficulty while studying. Okay. What happens? Would you like to join? Come. Yes. Come here. Introduce yourself with mic. Okay. You can put it here. Yes. Myself, Amara. Come here. Come here. You have to be in the frame. Yes. Myself, Amara Mittal. Yeah. In self-study, do you face a problem? No. You feel comfortable? Yes. You focus immediately? Yes. What is your recipe of focusing? Not fine. I'm sitting alone in the class. Sitting alone, that's it. All right. Thank you. Sometimes some students are doing self-study, and which topic currently you're doing in physics? Pressures and fluids we have done, and Artemis coefficients we have done. Archimedes. Okay, pressure you are doing. Like when you learn pressure, stress, so you open your notebook, you go for self study. आप घर गए, आपने सेल्फ स्टडी के लिए बैठ गए, किताब खोली, उस पे लिखा हुआ प्रेशर,
और जैसे आप पढ़ने लगे, प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज measured in Pascal and it is Newton per meter square or dynes per centimeter square. That is the pressure. When you are learning the pressure, it is a scalar quantity because pressure is transmitted equally in all directions. It is not having any particular direction. When you start learning pressure, you start looking at the fan and your attention is diverted. आपका जो ध्यान है वो बट जाता है, and you keep on looking at the fan and suddenly again you come back after 10 minutes, then again you study pressure. Pressure is what? Force acting per, then you start looking at the light, and in the light there is one lizard, एक छिपकली देख रहे हैं और उसके आगे एक इंसेक्ट, तो पूरे का पूरा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? डू यू फेस दिस काइंड ऑफ डिसअट्रैक्शन जनरली? कितने लोगों के साथ होती है? जस्ट रेज हैंड। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट। डिसअट्रैक्शन कितने लोगों के साथ होती है? होती है। अब मैं इसको दूर करने का तरीका बताता हूं। कम हियर। If you have any question, take it. Do you have any question? Okay, take it. Introduce yourself. I am Vidyarthi. Yeah, yes. Well, I have distractions like mobile phone. okay. Mobile distraction is with everybody. Nowadays, there is one disease which is worse than COVID, that is zero patience. You people can't wait. You want everything instantaneously. If you listen to music, you can't listen to music, you immediately skip the prelude and go to the lyrics, immediately skip the lyrics even. It is very challenging to make you to focus. अब उसका मैं आपको एक सिंपल मेथड बताता हूं। सेल्फ स्टडी आप किसको बोलते हैं? जो घर में जाके होमवर्क कर दिया, टीचर्स की नोटबुक टीचर को दिखा दी, दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी। वो क्लरिकल वर्क है। वो टीचर्स को रिकॉर्ड के लिए स्कूल में दिखाना होता है कि मैंने इतने चैप्टर्स करवा दिए, ये इसकी एक्सरसाइजेस है, ये नोटबुक्स हैं, ये बच्चे की मेंटेन है। सेल्फ स्टडी कब शुरू होती है? जब स्कूल का होमवर्क ओवर हो जाता है। उस सेल्फ स्टडी से आपके अंदर लर्निंग प्रोसेस क्रिएट होता है। हम टीचर्स बच्चों को पढ़ाते नहीं है, हम टीचर्स बच्चों को पढ़ना सिखाते हैं। आपकी नजर में टीचर क्या होता है? अब व्हाट्सएप, इंस्टा या फेसबुक यूनिवर्सिटी से आप उठा के टी फॉर दिस, ई फॉर दिस, ये नहीं। मेरी नजर में एक टीचर के अंदर स्टूडेंट होता है। जब टीचर क्लास में पढ़ाने जाता है तो वो अपने अंदर के स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है। अगर वो उसके अंदर का स्टूडेंट बाहर के स्टूडेंट से मैच कर गया तो बच्चे उससे पढ़ना पसंद करते हैं, अदरवाइज बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करते। इट मीन्स, मेरे साथ बोलो, ए गुड टीचर, यू हैव टू ऑल पार्टिसिपेट। अ गुड टीचर इज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, मेरा 2200 स्टूडेंट्स के साथ लाइव सेशन रहा है DAV हमीरपुर। इट्स लाइव ऑन द यूट्यूब, यू कैन चेक इट। तो एवरीवन पार्टिसिपेटेड, हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। मींस दैट जितनी देर वो सेशंस था, बच्चे इंटरेक्टिवली आके मुझसे क्वेश्चन पूछते थे। तो आप मुझसे जितने मर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इवन के टीचर्स जो हैं वो भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरे को आएगा तो बता दूंगा, नहीं आएगा तो आपसे पूछ लूंगा। आप लोगों को भी ना आए तो मुझे मजा आ जाएगा। Got it? But you have to participate. तो सबसे पहले
लोग हर बंदा आपको लेसन देगा कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, पर पढ़ कैसे ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानते हो? एवरीवन सेज हर बच्चे का अपना मेथड है पढ़ने का। यू कैनॉट फॉलो एनीबॉडीज मेथड ऑफ लर्निंग। लर्निंग कब शुरू होती है? जब होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। होमवर्क कैसे कंप्लीट करते हो? क्वेश्चन का प्रॉब्लम आया, फोटो खींचा, सॉल्यूशन आ गया, वो टेप के कर दिया, गुड ले लिया, वेरी गुड ले लिया, लेकिन आया तो नहीं ना, आपको आया तो नहीं ना। यू हैव टू फोकस फर्स्ट इन सेल्फ स्टडी। यू हैव टू इधर, you have to focus in self study, right? But try to understand how you will focus at the self study. पहले 20 minutes to 30 minutes आप लोगों ने नया टॉपिक नहीं पढ़ना। पहले 20 to 30 minutes नया टॉपिक नहीं पढ़ना। यस। उस 20 to 30 minutes में करना क्या है? सीधा खड़ा। उस 20 to 30 मिनट्स में करना क्या है? यू हैव टू रिवाइज। अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी? व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, but try to understand, when I was in 9th class, right, so my teacher was teaching me in class that force of interaction is directly proportional to the product of the masses. There are two masses, one is mass m, other is mass small m. The distance between them is d. The force of interaction is directly proportional to product of masses, inversely proportional to square of distance. Every material body in this universe attract each other with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance. मेरे दिमाग में आया कि हर मटेरियल बॉडी अट्रैक्ट करती है। तो मेरे स्कूल के बाहर एक ब्रेड पकौड़े वाला अंकल था। ओके, बैग चक के ले। अब मेरा ये स्कूल बैग और मेरे मुंह के पास रखना, ये मेरा स्कूल बैग, और मैंने बोला एवरी मटेरियल बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दो ब्रेड पकौड़ा आ जा भाई, नहीं आया। अगले दिन, द वेरी नेक्स्ट डे, आई आस्क्ड टीचर, ऑनरेबल मैम, यू टॉट अस यस्टरडे every material body in this universe attract each other in accordance with the Newton's law of gravitation. Bread पकौड़ा क्यों नहीं आया? Ma'am says, get out. At that time, corporal punishment was allowed. Honorable principal sir generally takes round, and I was, तू तो कुछ भी नहीं है, तेरे तो चार बनाते थे, जितने तेरी शरारत खत्म होती है मेरी शुरू होती थी। And principal took me in the office and punished me. Then very next day, ma'am taught us F is equal to GMM upon D square, where G is constant of proportionality. I asked teacher, why do we introduce constant of proportionality? तो पता हर क्लास में के 4-5 चमचे बैठे होंगे हैं, ओ पता क्या कहेंगे, मैम ये टाइम वेस्ट कर रहा है। अच्छा मेरे तो क्वेश्चन है, मैंने तो पूछना है, मैं मैम व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? तो वन ऑफ द यस स्टूडेंट सेज, यस मीन चमचा। वेरी सिंपल, व्हेन यू रिमूव अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इक्वल साइन इज देयर। मैंने कहा सर वो तो मैंने भी दिख रहा है, इवन आई ऑल्सो नो। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज unanswered. Why bread pakoda did not enter into my bag? And why did you introduce a constant of proportionality?
वो तो मेरे को भी दिखता है कि उसको रिमूव किया, इक्वल आ गया, इक्वल रिमूव किया तो वो आ जाएगा, जैसे वीडियो को रिवाइंड में करते हैं. Again, I was asked, get out. Again, principal took me, punished me. But I asked principal, sir, please, आप मेरे को punish जितना मर्जी करो, I don't care. But tell me, ask me the reason why I am thrown out of the class. कहते yes. Okay, ma'am says every material body in this universe attracts each other. ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया? Second, when she removes a proportionality constant, so why do we introduce a constant of proportionality? Anybody who will answer? देखिए, मैं तो करूंगा ही. एक गल कमा, कुछ बच्चे की कर दे हैं, they never participate. I'll tell you why. They never participate because बस में वो तू क्यों गया सीगा, तू बड़ा फुकरा बन के गया सीगा. क्या बोलते हैं? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. तो लोग तो बोलेंगे, लोग तो बोलेंगे. जो लोगों की बात सुनेगा वो जिंदगी में कभी राइज ही नहीं कर सकता. ये टैटू बना लो. अगर आप सुनिए, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने इनर की वॉइस सुनो कि मैंने ये बनना है, मैंने आईएएस बनना है, मैंने आईपीएस बनना है, मैंने आईएफएस बनना है, मैंने बिजनेसमैन बनना है, तो मैंने ये करना ही करना है. हर काम ले ही एक पागलपन होना जरूरी है. यस. नाउ who will tell me why do we introduce constant of personality? पहले तो आपने गैलीलियो बेचारे की बेइज्जती कर दी थी, अब ना करना. बताएगा कोई? मैं बताऊं? सी, the teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. The teaching of a teacher is directly proportional to the time you spend with him. The teaching of a teacher is equal to k times the time you spend with him. If k is greater than 0, teacher has got a knowledge. Sir, what is a plus b to 4? A to 4, 4a cube b, 6a square b square, 4ab cube plus ab 4. Sir, what is a plus b cube? A cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Sir, 7 upon 9 to raise power 0 is equal to, anything raised to power 0 equal to? 1. How, sir? How it is 1? Can you prove? Should I prove? Yes. Sure. See, can we write 7 upon 9, 1 minus 1? That is 7 upon 9 to power 1. 7 upon 9 minus 1 नीचे आ गया तो that is plus 1. This gets cancelled. ये फॉर्मूला पता है ना, a to m into a to minus n, a to m upon a to n. So this is how you get anything raised to power 0 is equal to 1. तो टीचर से कुछ भी पूछो वो बताएगा. k is greater than और सर 2 plus 2 क्या होता है? देखिए, a square minus b square equal to a plus b, A plus. right? Now if a equal to b, a square minus a square, a plus a minus a. If a is taken common, a minus a, 2a, a minus a, this gets cancelled.
1 is equal to 2, adding 3 on both sides. जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना रहे हैं। ये तो 5 बन गया यार, इसमें गलती क्या है? आईसीएससी चाहता है आपको इस तरह से समझाना कि समोसा या ब्रेड पकौड़ा बैग में क्यों नहीं आया, वो जी को क्यों इंट्रोड्यूस किया, 2 + 2 = 5 कैसे गलत है? द रीजन बीइंग इज दैट, मैं एक एक का आंसर करता हूं। 7 to raise power 9 = 0 = 1 कैसे आया? वो तो कर दिया। a - a is 0, ठीक है ना? a - a is 0, a - a is 0, 0/0 is indeterminate. Nobody knows about 0/0. It's not, nobody knows what is 0. 0 is a balancing point between -infinity and +infinity. What is infinity? Infinity is a relative term. For 1 millimeter, 1 kilometer is infinity. For 1 kilometer, 1 light year is infinity. 1 रुपए के पीछे 1 लाख रुपया इंफिनिटी है, और 1 लाख के पीछे 100 बिलियन रुपीज इंफिनिटी है। तो इंफिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म, बट 0/0 nobody knows. Even nobody knows 0. 0 is vacuum. 0 is क्या होता है? वैक्यूम के स्पेलिंग बोलना जरा, मैं भूल गया। VACCUM। V बोलो। हाँ, A VA, आगे बोलो। CC U। इट इज VACWM बेटा। आप लोगों को मैं खाली सेशन नहीं देने आया, आप लोगों को मैं जगाने आया हूं कि आप सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है। अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप स्कूल के होमवर्क के बाद जो पढ़ते हो, वो कितनी देर पढ़ते हो, वो डिसाइड करेगा आप करना क्या चाहते हो। हाउ इज इट? सो आई एम कमिंग बैक टू दैट। So k is greater than 0. Teacher has got a knowledge. If k equal to 0, teacher copy paste the book. If k is less than 0, teacher doesn't know the subject. So dear students, constant of proportionality determines the strength of the relation. देखो, जब किसी को हम कुछ नॉलेज देते हैं, मूर्ख आदमी पीठ आंखें बंद कर लेता, कान भी बंद कर लेता है। पंजाबी च कहते हैं देसी की डैश नु हजम नहीं होता। एनीवे, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशन। नाउ समोसा या ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इज 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। तो g का वैल्यू 6.7 डिवाइडेड बाय 10⁻7 विच इज नियरली 0। इसको बोलते हैं g इज ऑलमोस्ट 0। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर डे टू डे लाइफ। हैव यू एवर थॉट? इट मींस दैट हमें अपने आप को नोकिया 5110 नहीं बनाना, हमें अपने आप को अपग्रेड करते रहना है। इफ वी कीप ऑन अपग्रेडिंग माई सन, यू विल रॉक। इधर यू प्रॉमिस मी यू विल डू वंडर्स। पक्का? डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क? बेटा पता क्या है, क्वेश्चन मैं सेशंस कर रहे हैं, ठीक है, 500+ सेशन कर चुके हैं। It's my confidence. When you come and discuss and share something, that shows your confidence in your schooling and conditioning. Any question? You promise me you'll sit there calmly? Okay. God bless you. Love you. So, any question? No. Have a seat. Now, ICSE is different because ICSE concept-based learning देता है. Real understanding, not
मेमोराइजेशन। स्टैंड तो इधर आ मेरे को, कम कोई गल नहीं, इथे सिट हियर। आई एम आस्किंग यू टू सिट हियर प्लीज। माय डियर किड्स, ICSE conditions you not to cram but to understand. थिंकिंग एंड एप्लीकेशन। अब आपको कंसेप्ट ऑफ ए कॉन्सेप्ट बताया ना मैंने, ब्लू नीला है कोई जरूरी नहीं है। स्किल्स ICSE बिल्ड्स क्लियर कम्युनिकेशन। अब कई बच्चे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। स्कूल में आके आपकी टोटल ग्रोथ होती है पर्सनालिटी की। You participate in extra activities, you participate in function, you participate in debate, you participate in sports, you participate in one act play, mono act play. तो आप में एक कम्युनिकेशन स्किल आएगा, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आएंगी, और आपके माइंड में वो ब्रेड पकौड़ा क्यों नहीं आया, रिसर्च माइंडसेट होता है। Is it clear? Now, अब जब आप ICSE में पढ़ाई करते हो ना, when you go with the ICSE, बहुत सारे स्कूलों में other than ICSE आपको बोलते हैं कि अगर आपने JEE नीट में जाना है तो फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट कर लो। आपको पता है जो आपका 9th का सिलेबस है वो +1 से मैच करता है या +2 से, और 10th का भी +1 +2 से मैच करता है। तो व्हेन यू आर एन ICSE स्टूडेंट टिल 10th, यू आर इक्विवेलेंट टू 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ द अदर बोर्ड। ऑटोमेटिकली JEE नीट का फाउंडेशन इसी में कवर हो जाता है। हाउ मेनी पीपल आर अवेयर ऑफ दिस? वंडरफुल। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ग्लोबल करिकुलम है। एक ICSE में आपको मिलता है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अगले क्लासेस में जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके बेस पे लर्निंग। नाउ एनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? यस, स्पीक। My name is Anshika, Anshika, which grade you are learning? Which class? 9th. What is your question? Mic is इधर आ जाओ। Yes, your question. Okay. Introduce yourself. Mic. Yes, beta. My name is Harshita, Okay. God bless you. Which class? 9th. 9th. Hey, mic. इधर। You have to pin it here and here. Yes. I have to introduce Come here. myself first. Come here. I have to introduce myself first. Yes. My name is Vardhan. I'm from 9th grade. I Okay. just want to ask that everything you told about ICSE curriculum, I don't think it's actually worth it. First of all, what makes ICSE different from other boards? Okay. But you explained that we don't really focus on memorization. We actually do really focus on only memorization these days. That's Okay, I'll answer. सी, वरदान का क्वेश्चन है कि मार्क्स को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जो हमारा स्टडी है वो मेमोराइजेशन पे बेस्ड है। मैं मेमोराइजेशन को रट्टा से कंफ्यूज नहीं करना चाहता। रट्टा और मेमोराइजेशन में बड़ा फर्क है। रट्टा इज वन कैटेगरी ऑफ मेमोराइजेशन, बट मेमोराइजेशन विद कंसेप्ट क्लियरिंग इज अ लर्निंग प्रोसेस। तो जैसे मेरे बच्चे ने पूछा कि मार्क्स आना क्यों इंपॉर्टेंट है, जस्ट प्रेस दैट। मेरे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि मार्क्स को क्यों इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब मेरे इसका क्वेश्चन के पीछे एक और क्वेश्चन है। हम किसी बच्चे की
मेहनत को, उसके हार्ड वर्क को मार्क्स से ही स्केल कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक बच्चा, उसके 62% मार्क्स थे, तो जब वो मेरे पास पढ़ने आया, मैंने उसे रिफ्यूज कर दिया। मैंने कहा तेरे मार्क्स बड़े कम है, तू अच्छा नहीं कर पाएगी, तेरा टाइम वेस्ट होगा और मेरा रिजल्ट खराब होगा। उसने बोला सर मेरे अंदर विल है टू डू समथिंग बिग, और पढ़ना मैंने आपसे ही है। तो मुझे उसका जो सेकंड लाइन है, उससे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि इस बच्चे को मेरे ऊपर कितना फेथ है कि मैंने पढ़ना आपसे है। मैंने बड़ी मेहनत की। वो बच्चा आपके डिस्ट्रिक्ट बठिंडा की है, लहरा मोहब्बत का रहने वाला। कैन यू बिलीव, उस लड़की ने इंडिया में टॉप किया और मार्क्स कितने थे? 62%, +2 ड्रॉप करने के बाद। डोंट यू अप्रिशिएट? आप इसको अप्रिशिएट नहीं करोगे? अब मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ एक लाइन बोलो, बोलोगे? बोलो, परसेंटेज इज नॉट मेजरमेंट ऑफ Measurement of one's intelligence. one's intelligence. However, However, it determines it determines one's degree of hard work. one's degree of hard work. But see, as Let me complete it. However, it determines one degree of Hard work. one learns through One learns through one's own observation. one's own observation. However, However, a teacher is a positive catalyst a teacher is a positive catalyst who increases rate of observation. who increase the rate of observation. So, marks खाली किसी के ब्रेन का मेजरमेंट नहीं है, लेकिन सोसाइटी में एक पैरामीटर रखा गया कि जिसके पास बहुत बैंक बैलेंस है वो कंपैरेटिवली फाइनेंशियली वेल ऑफ है, जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड है वो कंपैरेटिवली बड़ा लैंडलॉर्ड है, और जिसके पास मार्क्स हैं वो कंपैरेटिवली हार्डवर्किंग है, मेहनती है, और वो एज रखता है बाकी लोगों के ऊपर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। That is not so true. Many people try so hard, but still they get like average marks. And moreover, the example you gave, you were the teacher. You should have found that actually that kid had the will, but teacher just judge students on the basis of their marks. That is how they are treated at schools these days. My dear child, everyone works very hard. I take example of two students. One is Vardhan, other is Pradhan. Vardhan and Pradhan both study very hard. Listen carefully. Somehow Vardhan gets very good marks, Pradhan does not get. And Pradhan starts blaming कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे गिराए अच्छे नहीं है, मैंने भी वही लिखा जो वरदान ने लिखा, मैंने भी वही अटेम्प्ट किया जो नहीं। You don't know how to attempt a board paper. जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने 20+ years हेड एग्जामिनर बन के पेपर चेक किए हैं। टीम होती थी हमारी, एक टीचर सिर्फ, ध्यान से सुनो, एक टीचर सिर्फ 2 क्वेश्चन चेक करता है। अगर 40 क्वेश्चन है तो 20 टीचर्स की टीम बैठती है। हर क्वेश्चन के स्टेप्स होते हैं। जब कोई भी बोर्ड एग्जाम का पेपर इवेल्युएट कर होता है तो टीचर्स को उसकी मार्किंग स्कीम दी जाती है। ऑनरेबल मैम यहां खड़े हैं, वो भी मानते होंगे, और वो पेपर भी सॉल्व करके आता है। उस पेपर के स्टैंडर्ड्स के साथ रख के मार्क्स दिए जाते हैं। तो पेपर अटेम्प्ट इज एन आर्ट कहना, पेपर को अटेम्प्ट करना एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज है। 2 बच्चे बराबर मेहनत करते हैं, दोनों सिंसियर हैं, अगर दोनों का पेपर अटेम्प्ट करने का मेथोडोलॉजी सेम है तो मार्क्स दोनों के आएंगे। यू गॉट इट? तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये बड़ा फर्क पड़ता है। राइटिंग पे, प्रेजेंटेशन पे बड़ा फर्क पड़ता है। और जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर का जो आपका आंसर शीट है, उसमें आप तो जाएंगे नहीं, तो आप अपनी आंसर शीट में कैसे कम्युनिकेट करेंगे टीचर के साथ? थ्रू राइटिंग,
through ray diagram, through proper planning, writing a question number, mark scheme. तो टीचर को आपने उसको वेल प्रेजेंट करना है, और 90% in our country students are not aware of how to attempt a board exam paper. I have one more question. Everyone, Let me ask you, have I answered your question? But I'm still not much convinced. What makes you to feel convinced that marks नहीं होने चाहिए, ये कहना चाहते हो? नहीं, हाँ, मेरा कहना ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, फिर क्या हुआ? कईयों को मार्क्स नहीं मिलते ना। तो फिर वो नहीं लिखते तभी नहीं मिलते ना। अगर आप पेपर में अच्छा ही नहीं लिखोगे, मार्क्स कैसे देते हैं? हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, इंसान से ज्यादा मेहनत तो गधा करता है। आप हार्ड वर्क को खाली लेके मार्क्स के साथ कैसे जोड़ रहे हो भैया? हार्ड वर्क क्या है भाई? हार्ड वर्क इज दैट वर्क विच यू डोंट वांट टू डू बट यू हैव टू डू। बेटा, अगर दो बच्चे एक जैसा अटेम्प्ट कर रहे हैं और स्टैंडर्ड में लिख रहे हैं तो मार्क्स दोनों के आएंगे। अगर एक प्रॉपर प्लान से कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो चाहे वो उससे ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो, नहीं आएंगे। गॉट माय पॉइंट? ऐसे थोड़ी है उसके पर सुनो पेपर लिखो, मैंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, पेपर खाली छोड़ दो, नंबर दे देगा। So this is illogical. Next question. Every student has their own potential, but everyone is expected to do the same, get good marks. Teachers are standing here, okay? You can ask them. Everyone is expected to get good marks. Why? What are the other parameters suggest to the government कि मार्क्स को 0 कर दो, सभी स्कूल में आएंगे, यहां पर भांगड़ा करेंगे, डांस करेंगे, चले जाएंगे। तो उसके बाद एआई का वर्ड आ गया है, वी डोंट नो एल्गोरिथम, वी डोंट नो कोडिंग, वी डोंट नो प्रोग्रामिंग, वी डोंट नो हाउ टू हैंडल द मशीन। तो फिर की है, हाउ विल यू हैंडल इट? माय डियर चाइल्ड, there is suggest the government a new method by which you can say कि मार्क्स रहने दो। It will be a revolutionary idea by वरदान कि पेपर में मार्क्स नहीं आएंगे, लेकिन बंदे में हम साइंटिस्ट ढूंढ लेंगे, हम एपीजे अब्दुल कलाम ढूंढ लेंगे, उसमें हम उसमें एस सोमनाथ ढूंढ लेंगे, हम उसमें बेस्ट टीचर्स ढूंढ लेंगे। ऐसा पॉसिबल है? वो तो फिर ट्रेडिशनल आइडियाज है ना, वो तो पहले से चलते आ रहे हैं, तो लोग No. तो वही मानेंगे। अब 27 lakh students appear in plus 2 exam. How we can identify who is hardworking, who is not hardworking? Leave it. Only the marks will determine where they stand. Their paper attempt will determine where they stand. And in the field, their application of knowledge will tell where they stand. So there are so many parameters. One parameter is only the marks. Is the examination system. It is everywhere in the world. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर आप चले जाते हो तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपने ड्राइविंग सीखी है, ड्राइविंग कर रहे हो, उसके मार्क्स रिटर्न के अलग होंगे। रेड लाइट पे कैसे रुकना है, ब्रेक कहां लगानी है, कैसे क्लच दबाना है, क्या करना है। बाकी जब प्रैक्टिकली करोगे तो उसमें आपकी स्किल और अच्छी है। तो देयर इज नो ऑल्टरनेटिव देन मार्क सिस्टम। ऑल्टरनेटिव आप सजेस्ट कर दो। Practical knowledge. हाँ बोलो। Giving answers practically is also really important rather than just writing traditionally on paper. It happens. I don't know whether it is in your curriculum or not, but practical knowledge is very much there. You do physics, you do practical in the laboratory, you do chemistry. No sir. That is up to your school system. But when you are doing physics, chemistry, even maths even also have got a labs. So there are labs. You have to follow those labs. But do we really get to? That is not my problem. That is not your problem. Yes. Yes, sir. Next. Come. Mic there. ये आउट ऑफ द ब्लूज है ना अभी मार्क्स। और बताओ, पैमाने ही नहीं कोई और बताइए। यस, अब बेटा इधर कम हियर बेटा इधर। Hello everyone, my name is Manan. I want to ask if ICSE builds the foundation, so why MBA chooses CBSE or NCERT board over the ICSE? सी बेटा, एक्चुअली 1958 में जब कैम्ब्रिज ने
आईसीएसई को करिकुलम उसका डिजाइन किया, तो कुछ और बॉडीज भी थी, एजुकेशनल बॉडीज, उन्होंने भी अपना किया। फिर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने स्टेट बोर्ड्स को जनरेट कर दिया। तो स्टेट बोर्ड्स, ठीक है, और सेंट्रल सेकेंडरी बोर्ड्स, तो हर बोर्ड के अपने अपने पैरामीटर आ गए। लेकिन आईसीएसई का जो पैरामीटर है वो इंटरनेशनल है, कैम्ब्रिज का है। तो चॉइस इज योर्स, बट अकॉर्डिंग टू मी कैम्ब्रिज has got an edge over the others because it is tougher than the others. That's it. And do you believe in white holes because they can help in exiting from our galaxy? We'll discuss it later Because- because it will deviate it from the topic. Because I asked some sir. हाँ, I'll answer. ये दे दो क्लास के बाद। Okay. माइक इधर दे दो। Sorry. Dear students, she's asking white hole and black hole about ना, तो we'll discuss it. I'll answer your all. Yes, mic पे ले या फिर अब हो चुके हैं। Yes, anyone? All done? मार्क्स वाला। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन है, आप इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। ये बच्चे बोलते हैं मार्क्स नहीं होने चाहिए, चलो नहीं होते, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे इन 30 लाख स्टूडेंट्स जो अपीयर हो रहे हैं, हु इज डूइंग बेस्ट? आ जाओ इधर आ जाओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये पकड़ो अगर पहले से मार्क्स के अलावा कोई और सिस्टम चल रहा होता इधर इधर इधर। तो क्या आज भी हम यही कहते हैं कि मार्क्स इम्पोर्टेंट? लेट्स से कि कोई और सिस्टम है, मार्क्स वाला सिस्टम नहीं है, तो हम प्रेफर करते हैं उस सिस्टम को रादर देन इस मार्क्स वाले सिस्टम को। अब पहले से मार्क्स वाला सिस्टम चल रहा है तो आप वही प्रेफर कर रहे हो ना अभी? कोई हमने सिस्टम और मेरे बच्चे, इस पे रिसर्च एंड एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्क्स को रिमूव करके हम कौन सा नया मेथड लगाएं, क्योंकि ठीक है, प्रेयर है तो यू हैव टू स्टैंड अप। सो डियर स्टूडेंट्स, hope we have discussed about importance of ICSE and we have discussed about self study and अगर किसी बच्चे को कोई queries हो तो you can ask me, I will upload it. Okay, so thank you all. We had a good time all and hope you will all do self study and you will not think about omitting marks, rather आप मेहनत करेंगे, marks लेके आओगे, right? और कोई मेथड नहीं है। So thank you all, thank you very much. Okay.